Bismillahirrahmanirrahim. This is Faiza Khalid, lecturer in physics, SM College, Tandalaya. Today our lecture is of class first year, group science, subject physics, and the topic is friction. Today we are going to understand what is friction. Friction is basically the resistance between two bodies moving against each other. Friction is defined as when two bodies rub over each other. There is a certain type of resistance force between them, their surfaces, and there holds the friction, या वहाँ पर जो है वो friction exist करती है. Explanation, अगर हम इसको explain करें तो friction क्या होती है? Friction basically is a microscopic concept. When the two surfaces are placed over each other, एक ब्लॉक अगर हम एक सरफेस पे रख दें और उसके ऊपर एक अदद फोर्स अप्लाई करें, दैट इज F, और उसको हम स्लाइड करना या रब करना शुरू करें उस दूसरे सरफेस पर, तो वहाँ पर उन दोनों सरफेसेस के दरमियान एक अदद रिएक्शन फोर्स होगी. उनकी कंप्रेशंस और सप्रेशंस जो है वो एक दूसरे के अंदर इंटरलॉक हो जाएंगे, एंड दैट ड्यू टू दैट इंटरलॉकिंग, ड्यू टू दैट जो है वो जॉइंटिंग, वहाँ पर जो है वो रेजिस्टेंस होगी, वो उसको मूव करने के लिए रेजिस्ट करेगी, आगे जाने नहीं देगी, और वहाँ पर एक अदद फ्रिक्शन फोर्स आएगी, दैट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन फोर्स ऑफ द अप्लाइड फोर्स. ठीक है, देयरफॉर वी से फ्रिक्शन फोर्स इज द रिएक्शन फोर्स ऑफ अप्लाइड फोर्स, एंड देयर इज ऑल्सो व्हेन द बॉडी इज प्लेस्ड ऑन अ ब्लॉक, या फिर एक बॉडी को हम एक ब्लॉक पे प्लेस करते हैं तो एक सरफेस का भी रिएक्शन फोर्स होता है, वेट का भी रिएक्शन फोर्स होता है. ये दोनों रिएक्शन फोर्स F as friction force and the reaction force due to the weight are proportional, comes as proportional. ठीक है, there are certain types of reaction. इसी तरह से हम जो है वो इसी तनाजुर में हम जो है वो रिएक्शन फोर्स को या फ्रिक्शन फोर्स को अंडरस्टैंड करते हैं. There are certain types of friction. There are certain types of friction, that is limiting friction, first one is limiting friction, second one is rolling friction, these types holds due to the types of motion या due to the state of the body. ठीक है, when the two bodies stay static, जब तक वो मूव नहीं करती हैं, stay एक दूसरे के ऊपर stable रहती हैं एक दूसरे के ऊपर, when we place a surface on another surface, until and unless it doesn't move, तो friction जो है वो बिल्डअप होनी शुरू हो जाती है. इसको हम ग्राफ से समझते हैं. अगर हम एक ग्राफ जो है वो अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन के दरमियान जो है वो ग्राफ बना लें, तो जब तक दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर रब करती रहती हैं, यहाँ पर एक लिमिट अप्रोच करती है, और उस लिमिट तब तक जो है वो फ्रिक्शन बढ़ती रहती है, और एक सर्टेन लिमिट के बाद वो बॉडी जो है वो मूव करना शुरू कर देती है. जब तक वो मूव नहीं करती है, हम कहते हैं कि जो वो इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट रहती है, और वो जो है वो फ्रिक्शन बढ़ता रहता है, एंड देन देयर इज अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन. यहाँ पर लिमिट आ जाती है, और उस लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद जो है वो बॉडी रोल करना शुरू कर देती है, मूव करना शुरू कर देती है, एंड देन देयर इज अ रोलिंग फ्रिक्शन, और ऑल्सो कॉल्ड कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज काइनेटिक फ्रिक्शन. ठीक है, एंड अनटिल अनलेस द फ्रिक्शन स्टार्ट्स, जब तक वो होल्ड करके रखती है, चलती नहीं है, वो कहलाती है स्टेरिक फ्रिक्शन. So we also defined the types of friction in two types: steric friction, steric friction is the friction due to rest, or when the bodies are in a state of rest. Steric friction is defined as the friction between two bodies when they are in a state of rest, because it doesn't let them move. Both the compressions and the depressions are interlocked and the body doesn't move. But there, when we keep applying the force,
there comes a certain point when then release and the body starts sliding. That limiting point is called limiting friction, that certain friction. And then when it starts rolling, this type of friction, when they start moving, this type of friction is called kinetic friction. Friction between, नाम से जाया है, इसको हम नाम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, kinetic friction, the friction between two bodies moving with each other, moving over each other. There is a formula for static friction. Static friction can be defined as, because their reaction force, both the reaction force are proportional to each other, therefore we defined as friction force is proportional to R, and there is a constant of proportionality F. Friction, static friction with the initial S is equals to mu S R. This mu S is the coefficient of static friction, and for the moving friction we have mu K is equals to mu Fk is equals to mu K R. This SFS is always greater than Fk. This Fs is always greater than Fk, because at a certain limit, because is always greater than Fk, because as soon as the bodies are in state of rest, the friction keeps moving, keeps increasing. जब तक वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहती हैं, फ्रिक्शन बढ़ती रहती है. जैसे ही वो चलना शुरू कर देती है, बॉडी मूव करना शुरू कर देती है, फ्रिक्शन नहीं बढ़ती है, फ्रिक्शन उतनी ही रहती है, एंड बॉडीज आर मूविंग. देयरफॉर स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन. Friction by nature is a force, therefore the unit of friction is, the SI unit of friction is Newton. The SI unit of friction is Newton. There are some pros and cons of friction. Friction के कुछ pros हैं, कुछ cons हैं. Friction जो है वो basically अगर ना हो तो बॉडीज जो है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगी, हम चल नहीं सकेंगे, या बॉडीज एक दूसरे के ऊपर रब नहीं कर सकेंगी, एंड वी कैन नॉट मूव, देयर इज नो मोशन, ओनली स्लाइडिंग. अगर फ्रिक्शन नहीं होगी, फ्रिक्शन होती है तो मशीन में रस पैदा करती है, मशीन में रगड़ पैदा करती है. फ्रिक्शन को ख़त्म करने के लिए उसमें ग्रीसिंग की जाती है ताकि जो है वो बॉडीज जो है वो मशीन्स जो है वो चल सकें. मशीन्स के लिए जो है वो फ्रिक्शन अच्छी नहीं होती, फ्रिक्शन जो है वो डैमेज करती है. ये उसका डिसएडवांटेज होता है. लेकिन एडवांटेज ये होता है कि हमारे बॉडी में या हमारे इर्द गिर्द फ्रिक्शन है, बॉडीज एक दूसरे के ऊपर रब करती हैं, एक दूसरे के ऊपर कंप्रेशन जो है इंटरलॉक करती हैं, तो हम चल सकते हैं, मूव कर सकते हैं. लेकिन अगर ज़्यादा फ्रिक्शन होती है तो जो है वो मशीनरीज वगैरह के लिए डैमेजिंग होती है. जैसे